دباؤ نے مجبور کیا یا پیسے نے کام دکھایا؟ راولپنڈی میں اجتماعی ریپ کا شکار طالبہ ملزمان کے پہچانے چہرے بھول گئی۔ پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد کی اجتماعی زیادتی کیس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ ادیا اپنے ہی بیان سے مکر گئی۔ عدالت سے دوبارہ بیان قلمبند کرنے کی استدعا۔ کہا گرفتار ملزمان کو نہیں جانتی، عدالت انہیں رہا کرے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ذرائع کے مطابق 10 لاکھ روپے کے عوض فریقین نے صلح کر لی۔ لاہور میں سیکیورٹی گارڈ نے معمولی تلخ کلامی پر 17 سالہ طالب علم پر فائر کھول دیے۔ ماں باپ کا اکلوتا سہارا چھین لیا۔ مقتول حسیب گھر سے امتحان کی تیاری کے لیے نکلا تھا۔ ملزمان گرفتار۔ ہری پور میں 3 روز قبل قتل ہونے والے کم سن بچے کے قاتل پکڑے گئے۔ مقتول حسیب نے ملزمان کو زیادتی کرتے دیکھ لیا تھا۔ بدنامی کے خوف سے ملزمان نے حسیب کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ بڑے بھائی پر چوری کے الزام میں 2 نابالغ گرفتار۔ چھوٹے بھائی گھر پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ نپٹا دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پولیس کا کام ہے کہ وہ فیئر انویسٹیگیشن کرے۔ کس طرح یہ کلچر تبدیل کیا جائے؟ بچوں کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ کراچی میں ریکسر پل کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ مقتولین کی شناخت سعد حسین اور علی اصغر کے ناموں سے ہوئی۔ لیاری اور صدر کے رہائشی تھے۔ فرشتے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ جیو فینسنگ کے بعد 6 مشتبہ افراد شارٹ لسٹ۔ ابتدائی جوڈیشل انکوائری بھی تیار۔ ایس ایچ او، تفتیشی افسر اور محرر کو غفلت کے مرتکب قرار دے دیا گیا۔ پروگرام کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو، اس کو پھانسی ہو گئی۔ بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ آج کوٹ لکھپت جیل میں سلاخوں کے پیچھے قید ہے۔ جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اسے پھانسی دی گئی۔ جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا وہ آج جیل میں ہے۔ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی یوم تکبیر پر گھنگرج۔ کہا سابق حکومت چور تھی تو ترقیاتی کام کیسے ہوئے؟ موجودہ حکومت چور دروازے سے اقتدار میں آئی۔ صادق اور امینوں کی حکومت میں مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ دنیا میں اس حکومت کی کوئی عزت نہیں۔ یہ سیاسی بونے اپنا سیاسی قد اونچا کرنے کے لیے عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں۔ سیاسی بونا ہمیشہ بونا رہتا ہے، بانس پہ چڑھنے سے اس کا قد اونچا نہیں ہوتا۔ مریم اپنی اداؤں پر غور کریں، ہم نے کچھ کہا تو شکایت ہوگی۔ فردوس عاشق اوان کا رد عمل۔ کہا سیاسی بونے جتنے اونچے بانس پر چڑھ جائیں قد اونچا نہیں ہوتا۔ ضمیر کے قیدی ہی باہر بیٹھ کر بچوں کو شیلڈ بنا کر تحفظ مانگتے ہیں۔ سمدھی اور قائد حزب اختلاف پاکستان آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ملک کی معیشت کو چونا نہیں لگایا تو پاکستان تشریف لے آئیں، احتساب ہوگا۔ عمران خان جھکے گا نہیں۔ پوری دنیا نے نواز شریف کو دھماکہ کرنے سے منع کیا۔ نواز شریف جھکا نہیں، پاکستان کی عزت پر سودا نہیں کیا۔ حمزہ شہباز کی للکار۔ بولے آج پاکستان کو IMF کے پاس یرغمال بنا دیا گیا، اب عوام پر مہنگائی کی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ شاہد خاقان عباسی بولے آج کے دن نواز شریف نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ 28 مئی کو نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ قومی اسمبلی میں لیگی رہنما خواجہ آصف کی تقریر۔ کہا آج نواز شریف پابند سلاسل ہیں، ہمارے لیڈر کو اقتدار کی ہوس نہیں، قوم نے 3 بار اسے وزیر اعظم بنایا، اب جو حکومت آئی اس نے ملک کو IMF کے حوالے کر دیا۔ اگر کوئی جیل میں ہے تو اپنی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا کرارا رد عمل۔ کہا آپ کی چیخیں کوٹ لکھپت جیل تک پہنچ رہی ہیں۔ 35 سال تک حکومت کرنے والے اپنے علاج کے لیے ایک اسپتال تک نہیں بنا سکے۔ حکومت اتنی بے اختیار ہے کہ ہمارے 6 نکات بھی حل نہیں کر سکتی۔ کم از کم حکومت یہ بتائے کہ کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل کی پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو۔
बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए मुजव्वजा नुकात पर अमल किया गया तो बजट सेशन में वोट हुकूमत को देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज नैब में पेश होंगे। पार्टी इजलास में फैसला। पेशी के मौके पर इस्लामाबाद इंतजामिया के कड़े इंतजामात, पुलिस समेत 2000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और जायद असासा जात केस में आज तलब कर लिया। मुतालिका रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शुगर मिल्स केस की समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तहलील। हमजा शहबाज कहते हैं चेयरमैन नैब की मर्जी से बेंच तब्दील किया गया, गिरफ्तारी से नहीं डरता। वजीर आजम की जेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आर्मी चेक पोस्ट हमले की शदीद मजम्मत। फिरदौस आशिकावान ने कहा जिन्हें शिमाली वजीरिस्तान की तरक्की चुभती है उन्होंने अमन को दाव पर लगा दिया। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वजीर आजम ने कबायली इलाके की तरक्की के लिए 102 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। ये भी बताया मफरूर अफराद की पाकिस्तान हवालगी का मुआहिदा साइन हो चुका है। बैरून मुल्क असासे रखने वाले जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। रियासत पाकिस्तान बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात कहती हैं वज़ीर आज़म चाहते हैं बच्चों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ सजाए मौत का तयन हो। वज़ारत दाखिला, ह्यूमन राइट्स और वज़ारत कानून को मुसव्विदा बनाने की हिदायत कर दी। मुसव्विदे को काबीना के सामने पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में बच्चों को मोबाइल में मौजूद गलत मवाद से बचाने पर भी गौर किया गया। डॉलर फिर हेर फेर करने लगा। इंटरबैंक में पहले 1 रुपए 27 पैसे की छलांग लगाई, बाद में 48 पैसे कमी के बाद 150 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 150 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 748 पॉइंट्स कमी से 34,949 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में महंगाई ने दस्तक दे दी। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 70,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए इजाफे से 60,014 रुपए हो गई। बिजली सार्फिन के लिए भी बुरी खबर। नेपरा ने बिजली के निर्खों में भी फी यूनिट 55 पैसे इजाफा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 तातीलात का ऐलान कर दिया। 4 से 7 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। ईद से एक हफ्ता पहले ही ट्रेनों की टिकट्स नायाब, परदेसी परेशान। कराची में कैंट और सिटी स्टेशन पर शहरियों की लंबी कतारें। ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाने और ट्रेनों के साथ इजाफी बोगियां लगाने के बावजूद टिकट्स का हुसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। टोकन लेके जो ना लाइन में लगे हुए हैं, देखें अब या नसीब किस्मत है आगे मिलती है या नहीं मिलती। मुश्किलात तो शुरू से है कि कुलियों के पास सीटें मिलती हैं, इधर सीटें नहीं मिलती। मुश्किलात तो शुरू से है। जब भी लाइनों में जाओ तो सीटें नहीं मिलती, कुलियों से मिल जाती हैं। पाकिस्तान रेलवे का ईद के रोज टिकट्स में 50% रियायत का ऐलान। ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2, 3 और 8 जून को कराची, कोयटा, लाहौर और रावलपिंडी से ट्रेनें चलेंगी। बुकिंग आज से शुरू होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की दौड़ धूप बेसूद रही। कमरी कैलेंडर वफाकी काबीना के इजलास का हिस्सा ही ना बन सका। ईद के चांद का फैसला रोयत हिलाल कमेटी करेगी। इजलास 4 जून को होगा। लाड़काना में HIV वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा। मजीद 7 नए केसेस सामने आ गए। रतोडेरो में तादाद 707 हो गई। 580 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारा सेहत का वफ्द कराची पहुंच गया। रतोडेरो में HIV के फैलाव पर तहकीकात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आदिल।
और मैं हूं सादिया गौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने एक बार फिर सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अफ्तार के लिए आए मेहमानों को हरासा किया गया। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकारों ने कई अफराद को जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सिफारती सतह पर अब एहतजाज किया जाएगा। अपडेट लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद, बताइएगा, भारत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ाई हैं। जी, हर अहम मौका पर पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो तकारीब का एहतमाम करता है। नई दिल्ली में इसी सिलसिले में रमजान शरीफ में भी अफ्तारी दी जाती है। तो आज पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली की तरफ से एक अफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाया गया था और जिनमें अहम नुमाया मुस्लिम शख्सियात भी शामिल थी। लेकिन भारत की जो खुफिया इदारे हैं उनकी तरफ से जो भी मेहमान पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली आता था उसको हरासा करते थे, उनकी तलाशी ली जाती थी और उनमें से अक्सर को जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया। जबकि ऐसा भारत की तरफ से पहली मरतबा नहीं हो रहा। 23 मार्च को भी भारत की तरफ से इसी तरह किया गया कि 23 मार्च की भी यूम पाकिस्तान की जो तकरीब थी हाई कमीशन के अंदर, उसमें भी जो मेहमान थे उनके साथ बदतमीजी की गई। भारतीय एजेंसी के एहलकार जो हाई कमीशन के बाहर खड़े हुए थे वो उनका पीछा कर रहे थे। जो मेहमान अंदर आ रहे थे उनका पीछा किया जा रहा था, उनसे पूछताछ की जा रही थी, उनकी तलाशी ली जाती थी और उनमें से बेशतर को जो है वो वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान ने इस हवाले से सख्त गुस्से का इजहार किया है और जल्द पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के किसी सीनियर अफसर को बुलाकर उससे एहतजाज भी लॉन्च किया जाएगा और एहतजाजी मुलाकात उसके हवाले किया जाएगा। जो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकारों ने कई अफराद को जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर किया, जो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, तो तौजीह क्या पेश की उन्होंने? जी, कोई तौजीह पेश नहीं की सिक्योरिटी के नाम पे। और दूसरा ये इस तरह का जो है ये वो कहते हैं कि रेसिप्रोकेट ये हम उसका जो हमारे साथ जो सलूक होता है, लेकिन ये सब झूठ बोला जा रहा है। ये इसके अलावा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान हाई कमीशन की जो तकरीब है उसको खराब किया जाए और उसके वहाँ पे, ताकि आइंदा को वहाँ पे मेहमान जो है वो ना आ सके या मेहमान वहाँ से आने पाकिस्तान की हाई कमीशन में आने से घबराएं, इसलिए उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। ठीक है, भारत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस सिलसिले में रिपोर्ट कर रहे थे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर। आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी में 22 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती केस की, जिसका ड्रॉप सीन हो गया है। लड़की अपने पुराने बयान से ही फिर गई है। अदालत से दोबारा बयान रिकॉर्ड कराने की इस्तदा कर दी है। कहा, पहले जो बयान दिया था वो पुलिस और NGOs के दबाव में आकर दिया था। गिरफ्तार मुल्जिमान को नहीं जानती हूँ। दबाव ने मजबूर किया या पैसे ने काम दिखाया? इज्तिमाई रेप का शिकार तालिबा पहचाने चेहरे भूल गई। रावलपिंडी में 22 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती केस का ड्रॉप सीन हो गया। मुतासरा लड़की अपने बयान से मुनहरिफ। रेप का शिकार लड़की ने अदालत को बताया, पहले पुलिस और NGOs के दबाव पर बयान दिया। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को नहीं जानती। अदालत उन्हें रिहा कर दे तो कोई एतराज नहीं। लड़की का पहले अपने बयान में कहना था कि 15 और 16 मई की दरमियानी शब दोस्त के साथ सहरी करने गई तो मुल्जिमान ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। चंद रोज पहले लड़की ने मुल्जिमान को शनाख्त भी कर लिया था। जराये के मुताबिक 10 लाख रुपए के एवज दोनों फरीकैन में सुलह हो गई है, जिसके तहत